A very good morning. Today I am here to discuss late blight of potato. So let's begin with the introduction. Late blight of potato, which is caused by Phytophthora infestans Mont de Berry, is the most destructive plant disease for all potato varieties and responsible for the Irish potato famine in 1840s because it caused successive catastrophic failure of the primary food source for a large portion of the Irish population. The pathogen was first described by M.J. Berkeley in 1846 and subsequently named Phytophthora infestans by Anton de Berry in 1876. Due to late blight of potato, the estimated loss around $6.7 billion at the global level. In India, the overall reduction 10 to 15% in the yield is often estimated at the national level ड्यू टू लेट ब्लाइट। अगर हम इसके जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात देखें तो सबसे पहले लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज apparently originated in the Mexico where it spread along with the potato into the Andes. Anthracnose was first described from plant specimen obtained in Germany 1875. In India, the disease was first time introduced in Nilgiri Hills between 1870 and 1880. उसके बाद इसको रिपोर्ट किया गया दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में इन द हिमालय along with the English potato and it separate all the northern part. अगर सिस्टमेटिक पोजीशन जो Phytophthora infestans king belongs to the kingdom Chromista, phylum Oomycota, class Oomycetes, order Phyteales, family Phytaceae, genus Phytophthora and species infestans. Causal organism The causal organism of the potato leaf blight is Phytophthora infestans. The genus Phytophthora belongs to the Oomycetes that are heterophilic, that is A1 and A2 mating types required. And the mycelium is aseptate, that means कि जो सेल होगी वो लैक होगी क्रॉस वॉल, that means they lack the septa, which is the characteristic feature of Oomycetes. That means the Phytophthora are not belongs to the true fungi. And the mycelium is a stenocytic highline, that means the mycelium is a colorless and the cell wall lack pigmentation, यानी pigmentation नहीं होता, colorless होती है. And the mycelium also is a branched. The mycelium produce branch sporangiophore that produce lemon shaped sporangia at their tips. अब जहाँ पे ये स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होती है, द स्पोरेंजियोफोर form a sibling that are the characteristic feature of this fungi. Phytophthora infestans require two mating types, that is A1 and A2. When they are grow simultaneously, produce a sexual spore known as the oospore. ये स्पोरेंजिया फाइटोप्थोरा इंटेस्टांस की जो स्पोरेंजिया जो होता है वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है और थिन वॉल्ड होता है and sporangia germinate almost entirely by 3 to 8 zoospore at the temperature 12 to 15 degrees Celsius. Above the 15-degree temperature, say the sporangia may be germinate directly by producing a germ tube. Symptom The symptom appear at the first as a water soaked spot. Here you can see on the picture, usually at the edge of the lower leaf, because on the lower leaf the microclimate are more humid. इन मॉइस्ट वेदर द स्पॉट इनलार्ज रैपिडली. जो स्पॉट होता है जब टेम्परेचर बहुत कम होता है और मॉइस्ट क्लाइमेट होता है तो जो स्पॉट होता है वो रैपिडली इनलार्ज हो जाता है एंड फॉर्म ब्राउन. और ब्राउन कलर होता है ब्लाइटेड एरिया विद इनडिफिनाइट बॉर्डर्स. सून इंटायर लीव आर इन्फेक्टेड, डाई एंड बिकम लीव. अब इस पिक्चर में आप देखिए कि
एक वाइट डाउनी मिल्ड्यू जो ग्रोथ हो रही है एट द बॉर्डर ऑफ द लेजियन, जो 3 to 5 मिलीमीटर थिक होती है, ये आपको दिखाई पड़ती है। Here you can see on the picture, that is the symptom appears on the petiole and the stem of the plant, स्पेशली न्यू ग्रोथ पे, क्योंकि वहां पे जो मॉइस्ट होता है वो परसिस्ट होता है। उसके बाद अगर राइट हैंड साइड के आप पिक्चर पे देखेंगे तो जो लेजियन है वो टर्न हो गया है ब्राउन कलर में और ड्राई हो गया है, क्योंकि जो वेदर है वो ड्राई हो गया है। सिम्टम ऑन द ट्यूबर्स, इन्फेक्शन ऑन द ट्यूबर्स मोस्ट कॉमनली अकर व्हेन स्पोरेंजिया आर washed from lesion on the stem and foliage to the soil and then soil to the tubers. That means कि जो स्पोरेंजिया है वो वाश हो जाता है ड्यू टू रेन की वजह से स्टेम और फोलिएज से, उसके बाद वो सॉइल पे आता है और सॉइल से स्पोरेंजिया वो ट्यूबर पे अफेक्ट करती है, इन्फेक्शन कॉज करती है। Then the affected tuber at first show as purplish or brownish blotches consisting of a water-soaked body, डार्क समवॉट रेडिश ब्राउन टिश्यू दैट एक्सटेंड 5 to 15 मिलीमीटर। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि वो पैचेस ब्राउनिश जो ब्लॉचेस है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्फेक्टेड ट्यूबर में बी सब्सिक्वेंटली कवर विद स्पोरेंजियोफोर एंड स्पोर ऑफ द पैथोजन। द ट्यूबर्स become invaded by the secondary fungi and bacteria, causing soft rot and giving the rotting potatoes with offensive odor। और ये जो सेकेंडरी फंजाई है ये और सारे जो डिजीज है उनको ग्रो करने में वो हेल्प करते हैं। इस here you can see on the picture that is the reddish brown dry granular rot found under the skin, यानी इन्फेक्शन इतना सीवियर होता है कि वो जो आपकी स्किन होती है, जो ट्यूबर्स होता है उसकी स्किन पे भी उसका इफेक्ट देखा जा सकता है। Epidemiology, at the temperature 13 to 21 degrees Celsius, sporangia germinate by a single germ tube. But above the temperature 13 degrees Celsius, they stop the growth of the fungus, but do not kill it। यानी 13 डिग्री सेल्सियस पे जो ग्रोथ होती है फंगस की वो स्लो हो जाती है या स्टॉप हो जाती है, लेकिन जब टेम्परेचर फेवरेबल होता है देन दे अगेन स्प्रूलेट। Moist and moderate temperature 90 to 100% of humidity and 54 to 75 degree Fahrenheit to promote the production of the sporangia। Disease cycle, disease, the infected tubers are generally considered as the main source of a primary infection in India। Phytophthora intestines survive in living host tissues such as a seed tubers, skull piles, and volunteer potato। Volunteer potato are the infected tubers that are left over at the time of the harvesting and overwinter in the field। यानी वो पोटैटो ट्यूबर्स जो हार्वेस्टिंग के टाइम पे छूट गए हों सॉइल में और पूरी सीजन पूरे विंटर में वो फील्ड में पड़े हों। In the spring season, airborne spore from infected tuber transmit the pathogen to a new potato foliage by airborne spore। The resulting mycelium, उसकी वजह से क्या होता है, जो mycelium होती है वो सेपरेट होती है through the shoot causing discoloration and reaching the aerial stem and the leaf। Sporangia germination, the sporangia germinate by two methods like direct germination or indirect germination। Direct germination occur when the temperature 13 to 21 degrees Celsius, sporangia germinate by means of a single germ tube and penetrate, और वो penetrate करती है plant tissue को directly और through stomata। इनडायरेक्ट जर्मिनेशन तब होता है जब टेम्परेचर 7 to 13 डिग्री सेल्सियस होता है एंड फ्री वाटर इज प्रेजेंट। स्पोरेंजिया लिबरेट करती है 8 to 12 मोटाइल जूस्पोर। क्योंकि फाइटोफोरा इन्वेस्टांस जो है वो रिक्वायर्ड करता है टू मेटिंग टाइप दैट इज A1 and A2, और व्हेन दे ग्रो साइमल्टेनियसली तो एक सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन करते हैं जिसको जू स्पोर एंड
ये जो स्पोर्स स्विम करते हैं फ्रीली इंसिस्ट करते हैं देन इन्फेक्ट करते हैं लीफ सरफेस को विद जर्म ट्यूब थ्रू स्टोमेटा और बाय डायरेक्ट पेनिट्रेशन टू द टिश्यू। अब उसके बाद जो माइसिलियम होती है वो ग्रो करती है बिटवीन द सेल एंड यूटिलाइजिंग द लॉन्ग हाउस्टेरिया फॉर द न्यूट्रिएंट्स अंडर फेवरेबल। जब वेदर फेवरेबल होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द माइसिलियम न्यू स्पोरेंजिया फॉर्म होती है विद इन द 4 डेज फ्रॉम द इन्फेक्शन। यानी जिस दिन इन्फेक्शन हुआ है उसके 4 डे में ये स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है एंड वाइडली डिस्पर्स होती है बाय रेन विंड एंड अदर एजेंट के थ्रू। द सेकंड फेज ऑफ द डिजीज साइकिल दैट इज ट्यूबर इन्फेक्शन। क्योंकि जो ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस है ये अफेक्ट करता है पोटैटो को फोलिएज इन द फील्ड एंड जो ट्यूबर्स होता है वो स्टोरेज हाउस में जो स्टोर होते हैं और एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय कर देता है पूरी होल क्रॉप को। To do the second phase of the disease cycle, that is a tuber infection. During the wet weather, sporangia are washed down from the leaf, जैसे कि आपको previous slide में मैंने बताया है, and are carried into the soil. अब इस soil से tuber का infection होगा। Emerging जो zoospore होंगे वो जर्मिनेट करेंगे और पेनिट्रेट करेंगे ट्यूबर्स को थ्रू लेंटिकल्स और थ्रू वोन्स। In the tuber, the mycelium grow mostly between the cell and send long hausteria into the cell for the nutrition and may lead irregular purplish black or brownish blotches जो कि आपको पिछली स्लाइड में दिखाया गया है। Tuber contaminated at harvest with living sporangia present on the soil or on disease foliage। यानी जो ट्यूबर है वो उस पे भी स्पोरेंजिया होंगे, जो फोलिएज होगा उस पे भी स्पोरेंजिया होंगे और वो इन्फेक्ट करेंगे यानी पूरी होल क्रॉप को इन्फेक्ट करेंगे। However, most of the blighted tubers rot in the ground during storage। अब यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बताया गया है कि कैसे दिखाया गया है कि कैसे ये पूरी डिजीज साइकिल वो होती है। इसमें आप देखेंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एक्सट्रीमली रेयर होता है क्योंकि नेचर में जो उसके दोनों मैटिंग टाइप्स हैं दैट इज A1 और A2 वो प्रेजेंट बहुत कम ही होते हैं। अब जब वो प्रेजेंट होते हैं और साइमल्टेनियसली ग्रो करते हैं तब जाके एक न्यू स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको ऊ स्पोर कहते हैं और ये बाद में जाके इन्फेक्ट करते हैं लीफ को। देन उस लीफ से और जो आपका स्टेम होता है उस जब बारिश होती है जिसकी वजह से वो जो स्पोरेंजिया होती है वो वॉश आउट होती है सॉइल पे और उस सॉइल के थ्रू आपका ट्यूबर इन्फेक्शन होता है। क्योंकि जो न्यू स्ट्रेन है वो मोर एग्रेसिव है और उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी है और उसकी एडाप्टेशन है इन्वायरमेंट के टू सर्वाइव इन द हार्श कंडीशन। Disease management: the late blight of potato are controlled by the cultural method, chemical method and biological method। But cultural जो कंट्रोल है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट लेट ब्लाइट। अब इसको हम अप्लाइड कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग सर्वाइवल ऑफ द पैथोजन, रिप्रोडक्शन, डिस्पर्सल एंड पेनिट्रेशन ऑफ द पैथोजन बाय रिमूवल ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रिस। यानी जो प्लांट इन्फेक्टेड डिब्रिस है जो प्लांट के पार्ट्स हैं जो उस प्लांट के अराउंड है उसको हम रिमूव करके फील्ड से या यूज कर सकते हैं हम डिजीज फ्री सीड ट्यूबर या सर्टिफाइड सीड ट्यूबर को जैसे कि आपके या रेजिस्टेंट वैरायटी जैसे कि कुफरी हिमलानी है या कुफरी हिमसोना है फॉर द हिली रीजन एंड कुफरी चिप्सोना एंड कुफरी आनंद फॉर द प्लेन रीजन के लिए। या जो ट्यूबर्स है उसको स्टोरेज कर सकते हैं हम 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे या उससे कम टेम्परेचर पे। केमिकल कंट्रोल: the chemical controls are done by using fungicide। These fungicides are applied before the infection and it is done by two methods like spraying method and dusting method। जो स्प्रेइंग मेथड है वो बेस्ट मेथड है कंट्रोल करने के लिए इस
डिजीज को एंड रिपीटेड फोलिएज स्प्रे। इसमें हम फोलिएज स्प्रे करते हैं विद द शेड्यूल विद कॉपर फंजीसाइड एंड सच एज ए फिरनॉक्स हो गया, बिल्टॉक्स हो गया या फाइटलॉन हो गया। ये फंजीसाइड जो होते हैं इस फंजीसाइड में क्योंकि इसके एक्टिव कंपाउंड वो जिनेब है जिसमें 75%, और ये फॉर्म करते हैं एक बैरियर विद प्लांट सरफेस, और इनमें एक एंजाइम होता है सल्फा हाइड्रेल जो डिस्टर्ब करता है इसके सेलुलर रेस्पिरेशन को, और क्योंकि इसमें जिंक होता है जो कि प्रोवाइड करता है प्लांट को हेल्थ, और डार्कर और ग्रीन डार्क और ग्रीन करता है उसके जो उसके स्टेम होते हैं उसके लीफ होते हैं। Diethane Z78 and diethane M22 have proved more effective than the copper fungicide. Spraying should start when the plant are 8 inches and it should continue until the harvest time at 10 days interval. यानी जब हम स्प्रेइंग करेंगे तो वो जो प्लांट होना चाहिए वो 8 इंच टॉल होना चाहिए, और उसको तब तक कंटिन्यू रखना चाहिए जब हार्वेस्ट टाइम तक, अंटिल द हार्वेस्टिंग टाइम आ जाए। बशर्ते ये है कि आपको 10 डेज इंटरवल रखना होगा, 7 to 10 डेज, और बोथ द सरफेस ऑफ फोलिएज शुड बी प्रॉपरली प्रोटेक्टेड बाय एडुकेट स्प्रेइंग। यानी जो स्प्रेइंग होना चाहिए वो उसके फोलिएज पे उसकी लीफ को प्रॉपरली स्प्रे होना चाहिए। ये ब्लू का 50 है जिसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% है। ये भी एक इफेक्टिव फंजीसाइड है टू कंट्रोल ऑफ द डिजीज। Dusting method. Some people claim that dusting of the foliage with a copper line dust is a more effective control measure. अब जो डस्टिंग है वो उसको हम मॉर्निंग टाइम में करते हैं व्हेन प्लांट आर वेट एंड मॉइस्चर आर मॉइस्चर होना चाहिए। सैनिटेशन, डिस्ट्रक्शन और प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, refugee from pits and storehouse and other practical measures to reduce the incidence of it. यानी removal of the pathogen before it can affect or separate by weed control या debris management, या पूरी होल जो आपकी प्लांट है उसको बर्निंग करके जो उसके डेब्रिस हैं। Tuber treatment before storage. The tuber should be dipped in 1:1000 mercury chloride solution for 90 minutes. अब बिफोर द ट्यूबर ट्रीटमेंट दे शुड बी वॉश, यानी जो ट्यूबर है वो वॉश होने चाहिए। एवॉइडेंस ऑफ इंजीरियस टू ट्यूबर्स एट हार्वेस्ट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, यानी जब आप ट्यूबर को हार्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें इंजरी नहीं होना चाहिए। बायोलॉजिकल मेथड. द बायोलॉजिकल मैनेजमेंट आर इको फ्रेंडली एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली टूल होता है। इसमें हम यूज करते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ ओनियन, लीफ गार्लिक, मैलस टोरिंजो, जो कि पॉजिटिव इनिबिशन करता है फॉर द माइसीलियल ग्रोथ ऑफ द फाइटोफथोरा इंटेस्टाइन। मैलस टोरिंजो है उसका एक्सट्रैक्ट जो है वो स्ट्रांगली इनिबिटेड है फाइटोफथोरा इंटेस्टाइन के लिए, और एक इफेक्टिव मैनेजिंग टूल है फॉर द लेट ब्लाइट। बैसिलस सबटिलिस एंड ट्राइकोडर्मा वायरिडी. Bacillus subtilis B5 0.25% and Trichoderma viride TB 0.7% वो अप्लाइड किया जाता है बिफोर द डिजीज अपीयरेंस में। तो आप अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो ये दो रिसर्च पेपर है जो कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोफथोरा इंटेस्टाइन्स बायोलॉजी और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस एंड इट्स मैनेजमेंट अप्रोच, और एक है कि कैसे इस पोटैटो का इवोल्यूशन और उसका इवेल्युएशन, उसकी पोटैटो वैरायटीज कितना यील्ड आ रही है और कितनी क्वालिटी है, और उस कौन कौन सी वैरायटीज रेजिस्टेंस वैरायटीज है, ये दोनों रिसर्च पेपर आप देख सकते हैं। या फिर आप डिफरेंट बुक्स को कंसिडर कर सकते हैं, जैसे प्लांट पैथोलॉजी की एक RS मेहरोत्रा की है, और जो फॉरेन ऑथर है जैसे कि GN एग्रियोस की है ये बुक आती है, और इंडियन ऑथर में PD शर्मा की वो बेस्ट बुक है। सो थैंक यू सो मच।